کریں گے۔ اے آسمانی خدا، ہم تیری حضوری سے کلام کو مانگتے ہیں۔ ہم نے دل کھول کر ورشپ کی تیری حضوری میں، تیرے نام کو مبارک کہا، کیونکہ تو خدائے قدوس ہے، تو خدائے رب الافواج ہے۔ تو آج اس جگہ پر اپنے کلام کے وسیلہ سے موجود ہونا، اے خداوند بولنے والی میں نہیں بلکہ تیرا روح ٹھہرے۔ اے خداوند، کیونکہ تیرا بندہ پالوس کہتا ہے نہ میں آدمیوں کی طرف سے نہ اپنے دلی ارادہ سے بلکہ خدا کی طرف سے اور خدا میں ہو کر بولتا ہوں۔ اے آسمانی خدا، آج میں تجھ میں ہو کر اور تیری طرف سے بولوں۔ میرا ایک بھی لفظ میرا نہیں بلکہ ہر ایک لفظ تیرے کلام کا ہو اور تیری طرف سے ہو۔ سننے والے ایک ایک کان کو اے خداوند بلیس کر دینا۔ یہ کلام کبھی بھی ان کی زندگیوں سے، ان کی سوچوں سے، ان کے خیالوں سے دشمن ابلیس چرانے نہ پائے، بلکہ یہ کلام ہمیشہ ان کی تربیت کرتا چلا جائے، یسوع کے نام میں آمین۔ کلام سننے کے لیے تیار؟ 10 میں سے سیموئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 11 آیت۔ پہلا سیموئیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ بائبل مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب پر برکت ٹھہرے، آمین۔ آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا کہ حنا نے دعا کی۔ اس کی دعا کا آغاز ہے، اے رب الافواج، گاڈ آف ہوسٹ، لارڈ آف آرمیز۔ بائبل کے اندر اس کا استعمال 285 ٹائمز ہوا ہے، اور گریک میں اس کا ورڈ ہے لارڈ المائٹی۔ حنا جب خدا کی حضوری میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے لشکروں کے خدا، اگر تو مجھے بیٹا بخشے تو میں اسے تیرا نذیر ٹھہراؤں گی۔ وہ کسی اور نام سے بھی تو پکار سکتی تھی، خدائے رحیم کے نام سے بھی تو پکار سکتی تھی، خدائے رحم کرنے والے غیور خدا کے نام سے بھی تو پکار سکتی تھی، لیکن یہاں پر ایک اتھینٹک ورڈ یوز ہوا ہے، رب الافواج۔ رب الافواج مطلب لارڈ آف آرمی۔ ان دنوں کے اندر بنی اسرائیل کی کچھ حالت اچھی نہیں تھی۔ ان دنوں میں ایک سردار کاہن تھا ایلی، اس کے 2 بیٹے تھے، اور بنی اسرائیل قوم قربانیاں لے کر ہیکل کے اندر آتے تھے، لیکن ایلی کاہن کے بیٹے کیا کرتے تھے کہ وہ جو قربانی لے کر آتے تھے نا، اس سے پہلے کہ وہ خدا کی حضوری میں چربی چڑھائی جائے، اس میں سے گوشت نکال کر لے جاتے، کہتے کہ نا ایلی کاہن کے بیٹوں نے کباب کھانے ہیں تو آج جو نا گوشت ہمیں پہلے دے دو۔ خدا کو یہ قربانی بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جاتے تھے لوگ اور کہتے تھے، ایلی کاہن تیرے بیٹے خدا کو قربانی دینے سے پہلے اس میں سے ہدیہ چرا لیتے ہیں۔ ایلی کاہن اپنے بیٹوں کو منع کرتا، لیکن اس کے بیٹے اس کی نہ سنتے۔ ایلی بھی ان کھانوں کو کھا کھا کے خوب موٹا ہو گیا، اتنا موٹا ہو گیا کہ اس سے چیئر سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ قربانی اوپری آگ جلا کر اس کو خراب کر دینا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ اب حنا ہر سال جاتی تھی عبادت کرنے کے لیے، دعا گو انسان۔ حنا ہر سال دعا کرنے کے لیے جاتی ہے، اور اس کا خدا کی ہیکل کے اندر یہ حال تھا کہ وہ اپنے، اب حنا ہیکل کے اندر جاتی ہے، ہیکل کا حال دیکھتی ہے کہ وہاں پر وہ رونق نہیں ہے، لوگ ہدیے لے کر نہیں آتے ہیں۔ حنا اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اپنے دل میں دعا کرتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں زبان سے دعا کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں دل میں دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب حنا خدا سے دعا کرتی کہ خدا
बख्शे तो वो इस हैकल के अंदर आएगा और उसकी रौनक को दुबाला करेगा। खुदावन ने उसकी आंखों के आंसुओं को और उसके दिल की आवाज को, जुबान की आवाज को नहीं, दिल की आवाज को और मुराद को पूरा किया और उसके फर्जंदे नरीना सैमुएल नबी बख्शा। सैमुएल अभी छोटा ही था तो खुदा की आवाज को सुनना शुरू करता है। उससे पहले एली काहीन जो हैकल के अंदर बैठकर कुर्बानियां कबूल करने के लिए, कुर्बानियां लेने के लिए, हदिये लेने के लिए बैठा रहता था, उससे खुदा कलाम नहीं करता क्योंकि उसकी खिदमत ठीक नहीं थी। उन चर्चिस के अंदर, उन खादमों की जिंदगियों के अंदर कभी खुदा कलाम नहीं करता जिनकी खिदमत ठीक नहीं होती। खुदा उनसे कभी कलाम नहीं करता, उसकी जगह पर एक बच्चे को खड़ा कर देता है। अब एली काहीन से खुदा कलाम नहीं करता, खुदा भी खामोश है, खुदा भी बनी इस्राएल कौम को उनके हाल के ऊपर छोड़ देता है। फिर खुदावन ने अपने बंदा सैमुएल को देखा कि ये तो मैंने इसको पैदा होते ही अपना बना लिया, ये तो मेरा मंसूर है। वो खुदा के घर के अंदर खिदमत करता है, खूब खिदमत करता है, खुदा उससे हम कलाम होता है। और लोग अब एली काहीन की बजाय सैमुएल नबी के पास आना शुरू हो जाते हैं। खुदा अब सैमुएल से कलाम करना शुरू कर देता है और सैमुएल जो है वो इस कदर खिदमत के अंदर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है कि अब सिला के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी किसके पास आते हैं कलाम पूछने के लिए? सैमुएल नबी के पास आते हैं। पूरे इस्राएल के अंदर ये बात मशहूर हो जाती है, एली काहीन के बेटे नहीं, एली काहीन नहीं बल्कि सैमुएल एक नबी है सिला के अंदर जो कि खुदावंद की आवाज का बयान करता है। रब्बुल अफ़वाज ने अपनी मदाखलत की। जहां पर चर्चिस ठीक नहीं होते हैं वहां पर कौन मदाखलत करता है? रब्बुल अफ़वाज। कौन मदाखलत करता है? अब बनी इस्राएल कौम के कामों के अंदर रब्बुल अफ़वाज ने मदाखलत की और रब्बुल अफ़वाज ने मसा कर दिया सैमुएल नबी को। क्या आपको खुदा ने मसा किया है? हमने कहा कि हम खुदा के लश्करों के अंदर शामिल हैं। क्या खुदा ने आपको मसा किया? क्या आपके सर के ऊपर मसा का तेल उंडेला गया? सोचें इस बात को कि क्या मैं खुदा के लश्करों के अंदर शामिल हूं? सैमुएल नबी के पास खुदा के लश्करों के अंदर शामिल हूं। सैमुएल नबी के पास एक शख्स आया, खुदा की तारीफ करने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला। भेड़ बकरियां वो चराया करता था, खुदा का मंसूर ठहरा। खुदा ने उसके बारे में बोला कि सैमुएल के बाद ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। सैमुएल को खुदा ने खुद जमीन पर भेजा अपना नजीर बनाकर। खुदा इंसान तो बहुत पैदा करता है लेकिन नजीर कम होते हैं। सैमुएल एक खुदा का नजीर था। उसको खुदा ने मसा किया कि वो बहुत से लोगों को खुदा की बादशाहत के अंदर और उसकी फौजों के अंदर शामिल कर दे। सैमुएल को खुदा ने बोला जा और जाकर साउल को मेरे लिए मसा कर कि वो बनी इस्राएल कौम का बादशाह हो। सैमुएल के बाद सैमुएल ने जब साउल को मसा किया उसके बाद खुदा ने कहा कि साउल मेरे दिल के मुआफिक नहीं मिला, वो यहोवा खुदा की गैरत नहीं रखता इतनी ज्यादा। मैं उसको कहता कुछ और हूं, वो करता कुछ और है, वो अपनी मन मर्जियां करता है, वो मेरे लश्करों को बढ़ा नहीं रहा। मैंने उसको बोला कि जा इस शहर के बादशाह के ऊपर हमला कर और उसका सब कुछ यहोवा खुदा के नाम कर दे। ना उसमें से तू भेड़ लेना, ना बकरी लेना, ना कोई जानवर लेना। लेकिन साउल ने क्या किया? सारी मोटी मोटी और अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी कर ली और जो है ना वो अलग रख दी। सैमुएल जाता है साउल के पास और कहता है कि क्या तूने खुदा की आवाज को सुना? कहता है हाँ, देख मैं उस शहर को फतह कर लाया हूं। खुदा ने उसको बोला था इस शहर को जला देना, उसने नहीं ऐसा किया।
اس نے بولا کہ نا میری مرضی یہ ہے کہ میں یہ ساری موٹی موٹی بھیڑ بکریاں لوں اور ان کو جا کر خدا کی ہیکل کے اندر دوں. تو سیموئیل کہتا ہے کیا تجھے خدا کی آواز پر یقین نہ تھا؟ کیا تو نے خدا کی آواز کو نہ سنا؟ کیا تیرے کان بند تھے؟ خدا نے تجھ سے بولا کہ یہ جب تو جنگ کے لیے جائے گا تو نہ وہاں سے بھیڑ لینا نہ بکری لینا، بلکہ ہر ایک چیز کو نیستہ نابود کر دینا. تو نے خدا کی آواز کو کیوں نہ سنا؟ میں نے تو خدا سے دعا کی کہ ساؤل کے گھر سے کبھی بادشاہت ختم نہ ہو، لیکن تو نے اپنی بربادی کا بندوبست خود کیا. اب تیری جگہ پر نیا بادشاہ آ جائے گا. پھر سیموئیل نبی نے ایک بادشاہ کو انائٹ کیا جس کا نام تھا داؤد بادشاہ. وہ ساز بجانے میں ماہر، حمد کرنے میں ماہر. جیسے ہم لوگ یہاں پہ 2 گھنٹے حمد کرتے ہیں، کون کون حمد کرنے میں ماہر ہو گیا ہے؟ سر پر ہر جب گیت گاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ گیت کا اگلا لفظ یہ ہے. کسی کسی یہ پتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ورشپ کرنے میں ماہر نہیں ہیں. ہم پاسٹر مقبول جب ورشپ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے بعد یہ لفظ آئے گا. اگر نہیں پتا ہوتا تو آپ ورشپ کرنے میں بھی ماہر نہیں ہیں. اس بات کے بارے میں سوچیں کہ خدا اس کو بلاتا ہے جو اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے. ابھی داؤد چھوٹا ہی تھا، اپنے بھائیوں کو کھانا دینے جاتا ہے. وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام تھا جاتی جولیت. جاتی جولیت کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. ان کے خدا نے ان کو وہ قوت اور ان کو وہ زور نہیں بخشا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. جس کو خدا مسا کرتا ہے اس کے اندر یہوہ خدا کی غیرت ہوتی ہے. داؤد کہتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں جو اس جاتی جولیت کو منہ توڑ جواب دے، کیونکہ وہ یہوہ خدا کی تکفیر کر رہا ہے. وہ لشکروں کے خدا کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے اندر وہ قوت اور وہ زور نہیں ہے کہ وہ ان کو بچا سکے. میں آج ایک شخص سے مقابلہ کروں گا، ساری بنی اسرائیل قوم میری غلام بن جائے گی. کیا داؤد کہتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل قوم کے اندر، ہماری فوجوں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا نہیں جو جاتی جولیت کو منہ توڑ جواب دے؟ داؤد کہتا ہے میں جاؤں گا. یہوہ خدا کے نام کی غیرت. وہ کہتا ہے میں جاؤں گا لشکروں کے خدا کے نام سے. اس کو کہتے ہیں تو بھی چھوٹا ہے، نرم و نازک ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، میرے اندر یہوہ خدا کا کلام ہے، یہوہ خدا کی قدرت ہے. وہ جا کے جاتی جولیت کو کہتا ہے اے نامقدون انسان، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ میں اس خدا کو جانتا ہوں جس کا نام یہوہ سبوت ہے، لارڈ آف آرمی. وہ میرے ساتھ جائے گا آج. اور تو بات کرتا ہے مقابلہ کرنے کی، میں تو تجھے ایک پتھر سے ہی مار ڈالوں گا. یہوہ خدا نے اپنی مداخلت کی. یہوہ خدا داؤد کی خود رہنمائی کرتا ہے. یہوہ خدا اس وقت خود داؤد کے ساتھ موجود تھا. سوچنے والی بات ہے، کبھی ایسا ہوا ہے اینٹ لگ جائے تو انسان نہیں مرتا، وہ بھی پھر جا کے ICU میں بچ جاتا ہے. ایک پتھر گھما کر مارا اور انسان مر گیا، اور وہ بھی جنگجو. یہوہ خدا نے خود مداخلت کی. داؤد کے پتھر کو اس نے مسا کیا اور اس نے کہا آج بنی اسرائیل قوم جان جائے گی کہ میں لشکروں کا خدا ہوں. آپ کا بھی خدا لشکروں کا خدا ہے. اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. جنگجو ہے، ہم سب روحانی جنگیں لڑنے والے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ کبھی آپ نے بولا ہے کہ یہوہ خدا میری جنگ کے اندر تو پہلے موجود ہو، مجھے جنگ کرنی نہ پڑے. ایک پتھر میں بولوں، ایک لفظ میں بولوں اور میرا دشمن ابلیس مر جائے. کبھی بولا؟ سوچے اس بات کو. ہم کہلاتے تو جنگجو ہیں، لیکن ہمیں خدا کے نام کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے اپنی جنگ شروع کس نام سے کرنی ہے. ہمیشہ آپ کی دعا کا آغاز ہونا چاہیے رب الافواج، خدا قدوس، سیناؤں کے یہوہ، آج میری جنگ میں مجھ سے پہلے موجود ہونا. پھر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف ایک پتھر اور آپ کا دشمن زمین کے نیچے.
कभी ऐसे किसी ने जंग की है? हम लोग तो रातों को भी दुआ करते हैं क्योंकि हम खुदा को उसके सही नाम से नहीं जानते हैं। जब आप यहोवा खुदा को यहोवा सबोत के नाम से जान जाएंगे तो आपको जंग करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबी लंबी दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी भी जरूरत पड़ती है। हर एक काम एक जैसा नहीं होता, हालात के मुताबिक से चलना पड़ता है। यहोवा खुदा को बोले, यहोवा सबोत, मैं तेरे बंदा दाऊद की तरह तेरे पास आई हूं, मेरे अंदर भी यहोवा खुदा की गैरत है। आज मेरा एक लफ्ज अबलीस की फौजों को घिरा दे। कभी ऐसा बोला है? नहीं बोला तो बोलना शुरू कर दें, क्योंकि जहां पर यहोवा सबोत का नाम ले लिया जाता है वहां पर यहोवा खुदा खुद मौजूद होता है। फिर दाऊद खुदा की हजूरी में ऐसा जंगजू बना, ऐसा जंगजू बना, क्योंकि उसने एक नाम को जान लिया जिसका नाम था यहोवा सबोत। वो कहता है कि मैं जंग के लिए जब जाऊंगा तो यहोवा मेरे आगे आगे होगा, यहोवा सबोत मेरी रहनुमाई करेगा, यहोवा खुदा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे जंग करना सिखाएगा। यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर मैं शामिल हूं। यहोवा खुदा कौन सा खुदा है? जो हमारे हाथों को जंग करना और हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। लेकिन हम दुनियादार इंसान कैसे हैं? जुबान से लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, दिमाग से लड़ते हैं। जब यहोवा सबोत आपकी जिंदगियों के अंदर होगा आपको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, बस आपने सोचना है और आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह से दाऊद एक जंग के लिए जाता है और वो खुदा से दुआ करता है कि खुदावन क्या मैं जंग करने के लिए जाऊं? खुदा कहता है दाऊद सुन मेरी बात, आज तू जंग करने के लिए जाएगा ना तो अपनी फौजों को एक हुक्म दे देना कि जब तू शतूत की टहनियों को हिलता हुआ देखे तो समझ जाना कि यहोवा खुदा की फौजें तेरे आगे आगे चल रही हैं। उस वक्त तू जब अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो तेरा दुश्मन अबलीस और तमाम फौजें तेरे सामने सर नहीं उठा पाएंगी। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा प्लान किया है खुदा के सामने? क्या यहोवा खुदा मुझसे पहले जंग करने के लिए तू मौजूद होना? पास्टर साहब ऐसा करते हैं। पास्टर साहब कहते हैं कि यहोवा खुदा के एंजल्स आज आपकी जिंदगियों में जाए और आप फतह पाए, और पास्टर साहब का कहना और आपकी जिंदगियों के अंदर ऐसा हो जाता है। हालेलुया। यहोवा सबोत, अगर जिस शख्स को इस बात की और इस नाम की पहचान है वो कभी भी जंग में हार नहीं सकता, वो हमेशा जीतेगा दाऊद की तरह। दाऊद ने कभी कोई जंग नहीं हारी। इसी तरह एक और शख्स यहोवा खुदा आज भी हमारी जिंदगियों में मौजूद होता है, बहुत ही डरा हुआ। खुदा उसको खुद मसा करता है, उसको कहता है मेरे बंदा यशवा, ना मेरे कलाम से तू दाएं मुड़ना, ना मेरे कलाम से तू बाएं मुड़ना। मैंने अपने बंदा दाऊद को, मूसा को अपने पास बुला लिया है, उसने मेरे चेहरे को देखा, मैं उससे खुद हम कलाम होता था, तू मेरी हजूरी में रहता था, अब तू मुझ पर ईमान रख। मैंने वो शहर जो तू देख रहा है ना, वो मुल्क कनान है, उसके अंदर तू अपनी बनी इस्राएल कौम को लेकर जाएगा और तेरे लोग उस मुल्क के अंदर जाकर बसेंगे, वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तू उस शहर के अंदर जाकर अपने लोगों को बसा देना। यशवा कहता है खुदावन मैं इतना काबिल नहीं हूं, ऐ खुदावन मेरे अंदर डर है। खुदा कहता है तू जिस जगह पर पांव रखेगा मैं वो जगह तुझे दे दूंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कहता है अच्छा होते जंग करनी पैनी है। सबसे बड़ी जंग उसने की यरू का शहर, यरू के शहर की हदबंदी में वो मशहूर, वहां पर एक औरत थी राहब, उसका घर दीवार के ऊपर था, और एक घर कितना बड़ा हो सकता है? एक मरले का, मतलब उसकी दीवार जो मुहाफजत की दीवार थी वो इस मोटाई की, हम लोग अंदाजा कर सकते हैं इस मोटाई की थी कि उसके ऊपर 2 बैलगाड़ियां चल सकती हैं आसानी से।
हमसे ये 9 फुट की दीवार नहीं टूटती है, तो सोचे इतनी मोटी दीवार कौन तोड़े। यशवा ये देख रहा था। यहोवा खुदा उससे कहता है, यशवा मुझ पर ईमान रख, मैं तेरे साथ हूं, तू जा बनी इस्राएल कौम को उनको मुल्क के अंदर बसाने के लिए चला जा। अब यशवा कहता है, अच्छा यहोवा खुदा। वो कहता है, अच्छा मुझे पता तो चले कि जिस शहर को मैं फतह करने जा रहा हूं वो कैसा है। वो 2 शख्सों को भेजता है, कहता है जाओ मेरे लिए रास्ता बनाओ। यशवा 2 शख्सों को भेज देता है और रात को खुद नाइट प्रेयर पे चला जाता है। नाइट प्रेयर पे जाने के बाद वो कहता है, क्या खुदावन जंग तो यहोवा की है, मैं तेरा एक बस हथियार हूं। फिर वहां पर भी यहोवा खुदा ने खुद मदाखलत की। यहोवा खुदा जो लश्करों का खुदा है उसने खुद मदाखलत की। मतलब यशवा की जंग के अंदर यहोवा खुदा मौजूद था। यहोवा खुदा ने अपनी मदाखलत की और वो एक शख्स को दुआ खत्म करता और कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा जो एक नंगी तलवार लिए हुए अपने हाथ में खड़ा था। मैंने उस शख्स से पूछा कि तू कौन है, तू किसकी तरफ से है, बसने वाले लोगों की तरफ से है या मेरी फौजों में से है। वो कहता है, मैं लश्करों के खुदा का सरदार होकर तुम्हारे दरमियान में मौजूद हुआ हूं। हालेलुया। लश्करों का खुदा कहता है, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर और खौफ नहीं है, मुझे बस अपना प्लान बता। प्लान क्या है? अब कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने हाथों में नरसिंगे लो और यरू के चक्कर लगाओ। इमेजिन करें, क्या कभी ऐसे हुआ कि हम एक घर के चक्कर लगाएं और वो घिर जाए? ऐसे हुआ कभी? जब जिंदगियों के अंदर यहोवा खुदा होगा तो जितनी बड़ी मर्जी आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, वो आपके ललकारने से जाती रहेगी। हालेलुया। यहोवा खुदा की मदाखलत बस आपकी जिंदगियों के अंदर हो, आप उसके लश्करों के अंदर शामिल हो। यशवा को खुदा ने बताया कि मैं यहोवा खुदा की फौजों के लश्कर का सरदार हूं। इसी तरह से एक शख्स के बारे में हम जानते हैं, वो रॉयल प्रॉफिट था, उसका नाम यशायाह नबी। यशायाह हिजकिय्याह बादशाह के साथ रहता था। वो हमेशा रूल्स को ब्रेक करने वाला। वो जब उसको कोड़ हो जाता है तो हैकल से बाहर और महल से बाहर उसको ले जाते हैं, अब उससे कोई मिल नहीं सकता। तब यशायाह नबी खुदा के हजूर में जाता है और वो कहता है, क्या खुदावन मैं तेरे सामने आया हूं, मुझे देख और याद कर। यशायाह नबी को खुदा कहता है कि ऐ यशायाह, तू मेरा मंसूब है लेकिन तू मेरी आवाज को नहीं सुनता था। तू न जिस लोगों के अंदर रहता था, खुदा उसको अपनी कुदरत दिखाता है कि आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त के ऊपर एक शख्स बैठा है और उस शख्स के तख्त को लेकर उड़ने वाले 4 करोबीम हैं जो आसमान पर पुकारते रहते हैं, कदूस 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 रब्बुल अफवाज, खुदाए मेहरबान, खुदा तू ही है। वो आसमान पर इस लफ्ज की गूंज सुनता है, जिस तरह से हम जमीन पर यहोवा सेबोत के नाम की गूंज सुनते हैं जब पास्टर गा रहे होते हैं। इसी तरह से आसमान की गूंज यशायाह नबी के कानों में पड़ती और यशायाह नबी अपने सर पर हाथ रख लेता, कहता ओ मेरे खुदाया, ये क्या है? ये गूंज कितनी मुबारक है। मेरे तो लब इस गूंज में शामिल नहीं हो सकते, मेरे तो लब नजीस हैं। मैं तो एक खुदावन वो कामों को बयान ही नहीं कर पाया जो तू चाहता है। यहोवा खुदा ने अपनी दस्ते पनाह से एक सुलगता हुआ कोयला लिया और अपने बंदा यशायाह नबी की जुबान पर रखा और उसकी नजासत को दूर कर दिया। और पहली दफा यहोवा खुदा ने एक शख्स को अपने लश्करों के अंदर शामिल कर लिया। यहोवा खुदा ने उसको
उसको अपने लश्करों के अंदर शामिल किया और उससे कहा, अब तो आसमानी भेदों को देख। जिस तरह से आसमान पर लश्करों के लश्कर उसको मुबारक कहते हैं और कहते हैं रब्बुल अफ़वाज तू ही है, आज के बाद जमीन पर भी यही गूंज होगी और हमारे चर्च के अंदर ये गूंज गूंजी जाती है। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करें। आसमानी गूंज हमारे चर्च के अंदर है। जब क्वायर 15-20 दफा बोलती है ना, दमदमा बांध कर एक ही सांस के अंदर बोलती है यहोवा सबोत, यहोवा सबोत, तो खुदावंद अपना तख्त यहाँ पर लगा लेता है। बाइबल कहती है जंग के लिए तब तैयार होना जब तुरी की आवाज बुलंद और साफ हो। सरहर वर्शिप करते उनका एक एक लफ्ज समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मीन्स कि वो यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर शामिल। पास्टर मकबूल वर्शिप करते हैं, उनका एक एक लफ्ज हमें समझ आता है। मीन्स यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर शामिल। यहोवा खुदा ने प्लान किया कि क्यों ना जिस तरह से आसमान पर यहोवा खुदा के लश्कर हैं, जमीन पर भी लश्कर बना दिए जाएं। उसने जमीन के ऊपर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को रखा। उसने किसी को मुबश्शिर, किसी को रसूल, किसी को नबी बनाकर भेजा। मीन्स यहोवा खुदा के लश्कर। मैंने कहा था जब आप कलाम सुनेंगे तो इस बारे में सोचना आप यहोवा खुदा के लश्कर में शामिल है। कौन है इवेंजलिस्ट? खुदा के लश्कर। कौन कौन इसमें शामिल होना चाहता है? भी शामिल हो और दूसरों को भी यहोवा खुदा के तख्त के सामने, उसके लश्करों के सामने ले आए और बोले कि ऐ खुदावंद अब मैं तैयार हूं तेरे लश्करों के अंदर। क्योंकि जमीन और आसमान कॉपी हैं एक दूसरे की। जैसा आसमान वैसी जमीन। हम लोग कहते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यहोवा खुदा के लश्कर आसमानों पर, तो जमीन पर नहीं होने चाहिए। इवेंजलिस्ट खड़ा हो जाए तो के पास साहब देखो लश्करों के लश्कर में यहोवा खुदा के खेत के अंदर ले आया। सोचे इस बात को कि क्या आप खुद भी शामिल हैं यहोवा खुदा के लश्कर के अंदर और दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं। बाइबल के अंदर मुकाशवा की किताब उसके 19 बात के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने एक शख्स को आसमान से सफेद घोड़े के ऊपर जमीन की तरफ आते हुए देखा। एक शख्स को देखा जो सफेद घोड़े के ऊपर था और उसने खून की छिटकी हुई पोशाक पहनी और वो अपने लश्करों के साथ जमीन पर आ रहा है। जब यीशु मसीह के लश्कर हैं, जब पास्टरों के लश्कर हैं, तो क्या आप और मैं उस लश्कर के अंदर शामिल हैं? अगर आप शामिल हैं तो आज खुदा की हजूरी में बोले ऐ खुदावंद मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपनी इवेंजलिस्ट लश्कर के अंदर शामिल कर ले। ऐ खुदावंद मुझे अपने पास्टरों के लश्कर के अंदर शामिल कर ले। ऐ खुदावंद मुझे अपने नबियों के लश्कर के अंदर शामिल कर, ताकि मेरी आवाज की गूंज यहोवा से बहुत तक पहुंचे। हालेलुया। हम तो अच्छी वर्शिप नहीं करते तो हमने यहोवा खुदा के लश्करों में शामिल कैसे होना है? मैंने कहा मुझे यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर शामिल करने वाली मेरी बड़ी बहन नरगिस, उसने मुझे कलाम से जोड़ा, क्योंकि ये बाइबल आसमान की बादशाही का नक्शा है। उसने मुझे इस नक्शे के अंदर जोड़ दिया और आज मैं यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर शामिल हाल हूं। वो हम सब से पहले यहोवा खुदा के लश्करों में जाकर शामिल हो गई। उस लश्कर के अंदर जहां पर न दिन है न रात है, बल्कि एक ही आवाज गूंजती है, यहोवा सबोत, यहोवा सबोत। सिर्फ एक आवाज गूंजती है। क्या आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके कानों के अंदर वो आवाज गूंजती है? यहोवा सबोत। पास्टर साहब जब यहोवा सबोत का नाम ले रहे होते हैं, हम तो अपने कदमों पे नहीं खड़े होते, तो हम उसके लश्करों में कहां से खड़े होंगे? हमारे हाथ ताली बजाने के लिए तैयार नहीं होते, हमारा गला चीखता नहीं है,
अगर सरदारों के अंदर शामिल है, लश्करों के अंदर शामिल है, तो आपके नरसिंगे की आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, पर सब गला खराब है, गाया नहीं गया, पर सब लक च दर्द। फौजी कभी भी अनफिट नहीं होता, लेकिन हम लोग हाय पर सब इत्थे दर्द, हाय पर सब इत्थे दर्द, दर्दों से आप भर जाते हैं। सोचने की जरूरत है कि क्या हम यहोवा खुदा के लश्कर में शामिल हाल हैं? क्या हम लोगों को उसकी बादशाहत के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज खुद को उसके ताबे कर दे, रिपेंटिंग करें, तौबा करें और उसके सामने इकरार करें कि यहोवा खुदा, आज के बाद मुझे जो भी मिलेगा मैं उसको आसमानों के लश्कर के अंदर शामिल करने के लिए बोलूंगी। जिस तरह से मुझे मेरी बहन ने बोला, रीटा बाइबल पढ़ा कर, मैं उसके लश्करों में शामिल हो गई। क्या आप बोलते हैं अपने बच्चों को बाइबल पढ़ो? खुद को यहोवा खुदा के लश्करों में शामिल करना चाहते हैं तो खुदा से दुआ करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके लश्करों में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करेंगे। क्या खुदावन, जब तू सफेद घोड़े के ऊपर एक बार फिर से जब जमीन पर उतरे तो खुदावन मैं भी अपने लश्करों के साथ खड़ी हो जाऊं। ऐसे नहीं है कि आसमान की बादशाही में आप जाने के लिए तैयार हैं और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा। मैं भी लश्करों के लश्कर में शामिल हो जाऊं। सब अपने दिल के अंदर दुआ करें, क्योंकि मैंने कहा हन्ना ने दिल में दुआ की। आज अपने दिल में दुआ करें कि खुदावन मैं भी लश्करों के खुदा के हजूर में शामिल होने के लिए तैयार हूं। मैं लश्करों के लश्कर को मुबारक कहूंगी जो जंग में जोरावर है। सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। क्या खुदावन तू लश्करों का खुदा है, यहोवा सबूत है, तेरे सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। तू तो एक पत्थर से अपने लोगों को फतह दे देता है। तू कहता है तू जंग में जाएगा तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आज ऐ खुदावन जब मेरे लब कलाम के लिए खुले तो ऐ खुदावन मुझसे पहले तू जाना। जब मैं खुदावन कलाम करने के लिए जाऊं तो मुझसे पहले तू उस रूह को तैयार कर देना। आज जब मैं जंग के लिए लश्करों के अंदर शामिल की तो मैं वो खुदावन सिपह सलार ठहरूं जिससे तू खुश हो। सब खुदा की हजूरी में दुआ करें, क्योंकि आपका दुआ करना आसमान की बादशाही में आपको ले जाएगा। अगर हन्ना की दुआ से खुदा बख्श सकता है तो आपकी दुआ से आसमान खुलेगा और खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और आप लश्करों के अंदर शामिल हो जाएंगे। आप यहोवा खुदा के हजूर में शामिल हो जाएंगे। अपने बदनों के ऊपर हाथ रखें और बोलें, लश्करों के खुदा, बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आप खुदा से बोलें, कमजोरी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, नाकामी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ऐ खुदावन आज के बाद शुगर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ऐ खुदावन सर की दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, रसौलियां और पत्थरियां मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा खुदा के लश्करों के अंदर शामिल हो चुकी हूँ। मैं वो जंगी हथियार हूं जिसको अबलीस छू भी नहीं पाएगा। ऐ खुदावन मैं तेरा जंगी हथियार हूं। मेरे बदन के अंदर से सारी कमजोरी को निकाल दे। मेरे बदन के अंदर से ऐ खुदावन डर और खौफ और दहशत को निकाल दे। वो दहशत की रूह जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, जो खिदमत के काम को करने से मुझे रोकती है और कहती है ये तेरा काम नहीं। ऐ खुदावन मैंने आज कलाम से जान लिया कि ये मेरा ही काम है। ऐ खुदावन मुझे अपने लश्करों के अंदर शामिल कर दे। ऐ खुदावन मुझे अपने लश्करों के अंदर शामिल कर ले। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो और अपने दिल में दुआ करते रहें। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने दिल में दुआ करेंगे। लश्करों के अंदर शामिल होना चाहते हैं। आपकी तरक्की का राज है गैर जुबान। अपने लिए गैर जुबान में दुआ करें, क्योंकि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की चाहता है। और अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो अपनी जुबान को आज खोल लें और बोलें कि ऐ खुदावन मैं अपनी तरक्की चाहता हूँ, मैं लश्करों के खुदा के अंदर शामिल हाल होना चाहती हूँ। ऐ खुदावन मुझे लश्करों के अंदर शामिल कर।
सब अपनी आवाज को पूरा इस्तेमाल करें और बोले लश्करों के खुदा आज तो मुझे इस्तेमाल कर। जो हूँ सो हूँ सब गैर जुबान में दुआ करके फरमाता हूँ, सब गैर जुबान में दुआ करें, पुकारे मेरा बलफाज कहलाता हूँ। रोमसो बदो लिमिदे अदनो। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मेरा बलफाज कहलाता हूँ। रोसदो लमखो ओधनो यनदो। मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ, मेरा बलफाज कहलाता हूँ। यखदो रोसदो इमिले यानो। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, रोसदो याधा लिखे रे यादामो। मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ, यखदोरी बाधा निजे देनियोनो। मैं अब्राहम का खुदा कहलाता हूँ, लिखे रे आमाधा निवेदे रोजो। मैं सदरक में सकयब्द नजू का खुदा कहलाता हूँ। सेदरने बोदो ए बिजोरे सेदे। हरम्मा बे रम्मा बे। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मेरा बलफाज कहलाता हूँ, मेरा बलफाज कहलाता हूँ, मेरा बलफाज कहलाता हूँ। रोखसोली धिने रामाधाय बोलरो इमिधे राखासा धीमिनो बोयदम। की दुआ के वसीला से और कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।